ایک کال دی گئی ہے کہ اگر امن بحال نہ ہوا تو ہمارے خواتین بچے بزرگ تمام پورے ضلع میں نکل کر یہاں پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کریں گے۔ اہل تسنن کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جدال نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اہل تشیع وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ اب سوچنا پڑے گا، شیعہ بھی نہیں لڑنا چاہتا، سنی بھی نہیں لڑنا چاہتا۔ پھر پورے 1.5 ماہ نہیں گزرے اس کے بعد اچانک سے شیعہ سنی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مفادات کس کے ہیں؟ اس طرح نہ سمجھے کہ جو ہے نا پراچنار کے لوگ اکیلے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پورا KPK کیا پورا پنجاب، پورا سندھ، سب جو ہے نا پورا بلوچستان ہم پراچنار والوں کے ساتھ ہے۔ سیکورٹی ادارے، انتظامیہ عوام کے ساتھ جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھے، ورنہ یہ واضح پیغام ہے اگر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے تو کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہمارا ایک اگر بیٹا شہید ہو گیا ہم دوسرا بیٹا شہید کروائیں گے، دوسرا ہو گیا تیسرا کر گئے۔ امام حسین کی عزاداری کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ KPK کو بنو کے مظلوم نظر آتے ہیں۔ آج 1 ہفتہ ہونے والا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ کے توسط سے کہ وزیر اعلیٰ KPK نے کوئی پڑا چنار کرم کے لیے بات کی ہو؟ ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے۔ یہ جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں یہ یہودی ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ ہم اپنی حکومت کے اوپر زور مذمت کر رہے ہیں۔ یہ یقین کر لیں، چاہے وزیر اعلیٰ KPK ہو، چاہے گورنر KPK ہو، ہم کسی سے راضی نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ان کے پاس آج جائیں، ان کا حال لیں، ان کی خوراک پہنچائیں، ان کی دوائیاں پہنچائیں، سب کچھ پہنچائیں۔ اگر نہ پہنچا تو کل سے ہمارے جگہ جگہ پہ پنجاب، سندھ، چاروں صوبہ کی جو ہے نا دھرنے ہوں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور MWM وہ شیلٹر ہے جس میں ہر قسم کے مظلوم کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جو بھی مظلوم کے ساتھ ٹھہرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ ان کو کیا خبر؟ یہ ہمیں موت سے ڈراتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کا تعلق کربلا والوں سے ہے انہوں نے اپنی موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دے دی ہے۔ ایک بات وہ یہ ہے کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے، 1 یا 1.5 مہینہ پہلے کرم ایجنسی میں پڑا چنار میں امن مارچ ہوتا ہے جس میں اہل تشیع بھی شامل ہوتے ہیں، اہل تسنن بھی شامل ہوتے ہیں، مل کر وہ امن مارچ کرتے ہیں۔ اہل تسنن کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جدال نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اہل تشیع وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ اب سوچنا پڑے گا، شیعہ بھی نہیں لڑنا چاہتا، سنی بھی نہیں لڑنا چاہتا۔ پھر پورے 1.5 ماہ نہیں گزرے اس کے بعد اچانک سے شیعہ سنی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مفادات کس کے ہیں؟ جب شیعہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، اہل سنت بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا، امن مارچ ہوتا ہے، مشترکہ ریلیاں نکلائی جاتی ہیں، پھر اس کے 1.5 مہینے کے بعد آگ بھڑک اٹھتی ہے، جنگ کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اور کتنے جوان ہیں جن کو بے گناہ تیغ کر دیا گیا، جن کی میں اس دن پڑھ رہا تھا، ایک جوان ہے جس کے ایک بدن پر 75 سے زیادہ گولیاں لگی ہیں۔ آپ موت سے ہمیں نہیں ڈرائیں، واللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو امیہ کا زمانہ تھا۔ اگر بنو اموی خاندان حکومت میں رہتے ہوئے جب اہل تشیع کے گنے چنے افراد، مکتب اہل بیت کے گنے چنے افراد تھے، ان کو ختم نہیں کر سکے، کہ تم کس مائی کے لال ہو، کس باقی مولی ہو کہ آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے، جہاں جہاں محمد الرسول اللہ ہے، وہیں علی ولی اللہ ہے۔ تم کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ الحمدللہ ہر جگہ پر علی کے ماننے والے، ہر جگہ پر عزادار موجود ہیں۔
पाड़ा चिनार, एक बात। दूसरी बात, हमारे सिक्योरिटी इदारे, मैं दस बस्ता ये बात कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी इदारे, इंतजामिया जितनी भी है, इस टाइम पाकिस्तान की पब्लिक और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला जाहिर नजर आ रहा है। इसकी जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारे हैं, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, इसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। ये भरम, ये एतमाद जो मुल्क पाकिस्तान की कौम, ये लोग शिया हो चाहे सुन्नी हो, इदारों पर एतमाद करते हैं, इस एतमाद को बहाल रखने की जरूरत है। और ये एतमाद ये बहाल इदारे ही कर सकते हैं, इदारे ही बहाल करवा सकते हैं। आज तक चाहे कुफार के मुल्क हो, मुशरिकीन के मुल्क हो, यहूद और नसारा के मुल्क हो, कहीं पे ये नहीं मिलता है। अगर जंग की कैफियत भी हो, कभी भी एम्बुलेंसों को नहीं रोका गया, कभी भी अस्पतालों में इमरजेंसी इस तरह की नहीं बनाई गई। ये पाकिस्तान है, रियासत की नाक के अंदर एम्बुलेंस पर पथराव होता है, जख्मियों पर पथराव होता है। इसका जवाबदेह कौन है? ये सिक्योरिटी इदारे जवाबदेह हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान जवाबदेह है, ये केपीके गवर्नमेंट जवाबदेह है। ये क्यों हो रहा है इस तरह? एक बात, सिक्योरिटी इदारे जो अवाम के साथ एतमाद का रिश्ता है उसको बाहर रखें, वरना ये खाम ख्याली है। अगर कोई समझता है कि पाड़ा चिनार के लोग फकत पाड़ा चिनार के लोग हैं, तुम जानते ही नहीं हो जो हुसैनी कहते किसको है। ये पाड़ा चिनार की बात नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बात है, ये अहले तशय्यो की बात है, ये मिल्लत जाफरिया की बात है, हमारे एकाद की बात है, हमारे ईमान की बात है। हम अपने ईमान, अपने एतकाद पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सिक्योरिटी इदारे अपना किबला दुरुस्त करें और अवाम के साथ जो एतमाद है उसको बाहर रखने की कोशिश करें। ऐसा ना हो यह बिगड़ता हुआ एतमाद खुदा न खास्ता पूरे मुल्क के अमन को तबाह करना चाहिए। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता जो थोड़ा बहुत एतमाद बाकी है इदारों पर, सिक्योरिटी इदारों पर, इंतजामिया पर, सियासतदानों पर, अगर इसको बहाल नहीं करेंगे तो इस जंग में नहीं धकेलें। अगर हम सुकून से नहीं बैठेंगे तो कोई भी नहीं बैठेगा। चिनार में शिया जंग नहीं चाहते, अहले सुन्नत जंग नहीं चाहते, फिर जंग अमन मार्च होता है, अमन मार्च के 1.5 माह के बाद वहां पे जंग छिड़ जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक बात। दूसरी बात, सिक्योरिटी इदारे, इंतजामिया अवाम के साथ जो एतमाद है उसको बाहर रखे, वरना ये वाज़ेह पैगाम है, अगर हम चैन से नहीं बैठेंगे तो कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। 2 बातें। तीसरी बात, वो हमारे सियासतदान हैं जो ये समझते हैं कि वोट लेकर हम यहाँ इक़्तिदार के नशे में आकर बैठे हैं, हमसे पूछने वाला कोई नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई जब हमारे वजीर आला केपीके बनू की बिगड़ती हुई सूरत हाल देखकर वहां पर पहुंचते हैं, हमें थोड़ी तशफ़ी हुई, हमें थोड़ी तसल्ली मिली कि अब वजीर आला केपीके जो हैं वो मजलूमीन के साथ हैं। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद वो हमारा ख्वाब, शर्मिंदा ताबीर, वजीर आला केपीके को बन्नू के मजलूम नजर आते हैं। आज 1 हफ्ता होने वाला है, मैं पूछ सकता हूँ आपके तवज्जुह से कि वजीर आला केपीके ने कोई पाड़ा चिनार कुर्रम के लिए बात की हो? चाहे ये इक़्तिदार है, ये चंद दिन का है, चंद महीनों का है, चंद सालों का है, ये यकीन कर लें, चाहे वजीर आला केपीके हो, चाहे गवर्नर केपीके हो, हम किसी से राजी नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि मजलूम चाहे शिया हो, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे पाकिस्तान में रहने वाला किसी भी मसलक से हो, किसी भी अकीदे के साथ हो, हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है। और MWM वो शेल्टर है जिसमें हर किस्म के मजलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और हमारा ये अकीदा है, जो भी मजलूम के साथ ठहरता है वो इस दुनिया में भी सुरखरू है और आखिरत में भी सुरखरू है। हम वजीर आला केपीके, गवर्नर केपीके, कुंडी साहब हो,
चाहे अली अमीन साहब हो, हम ऐलान नाराज करते हैं, हम नाराज हैं आपकी पॉलिसियों से। आपको जहां पे भी मजलूम हो, आपको दस्त शफकत रखना चाहिए था, आपने नहीं रखा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, पहले भी वक्त आते रहे, गुजरते गए, आपसे बड़े बड़े हुक्मरान आते रहे, और अगर जालिम के खिलाफ नहीं बोले तो उसी जुल्म की दलदल में फंस गए, और आज तक उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आप मजलूम की हिमायत के लिए आपका हक बनता था। जिस तरह आप बनू गए हैं, हमें वहां पर खुशी हुई, आज हमें खुशी होती अगर आप पड़ा चिनार गए होते। हमारा आज का इज्तिमा अपने पड़ा चिनार के शहरियों के लिए, जिस दिन जो उनके जुल्म हो रहे हैं, उनकी खुराक बंद है, उन पे जो है ना खाना जंगी बनाई हुई है, छोटे छोटे बच्चों को ज़बह कर ले, उनके घरों को लूट रहे हैं, उनको मार रहे हैं। कोई आजकल 8 दिन हो गए हैं, कोई वहाँ पे ना कोई मिनिस्टर पहुँचा है, ना कोई वजीर आला पहुँचा है, ना कोई गवर्नर पहुँचा है, ना कोई सदर पहुँचा है। अगर सदर बता दे कि वहाँ पे जाएं और उनकी लड़ाई को कंट्रोल करें तो कर सकते हैं। इनको जो है ना एक कराची में एक वडेरे का ऊँट की टांग कटी है, इनको ऊँट की टांग नजर आ रही थी, और इंसानियत जो इतनी मर रही है, इंसानियत का इनको ख्याल नहीं है। इंसानियत क्यों नहीं निकली? ये हम इस तरह ना समझे कि जो है ना पड़ा चिनार के लोग अकेले हैं, वो अकेले नहीं है। पूरा KP की क्या, पूरा पंजाब, पूरा सिंध, सब जो है ना पूरा बलोचिस्तान पड़ा चिनार वालों के साथ है। अगर हम देख रहे हैं, अगर उनकी दवाइयाँ ना पहुँची, अगर उनकी खुर्रेजी बंद ना हुई, अली अमीन साहब और सब MNA MPA मिनिस्टर को कह रहे हैं कि अगर ये जंग बंद ना की गई तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पुरजोर मजम्मत होगी, और पूरे KPK में हम धरनों पे धरने देंगे। धरना हमें आता है धरना देना, लेकिन अपनी कौम के लिए धरना जरूर देंगे। ऐसे ना समझे, हमारा एक अगर बेटा शहीद हो गया, हम दूसरा बेटा शहीद करवाएंगे, दूसरा हो गया तीसरा कर गए। इमाम हुसैन की आज़ादारी को ख़त्म नहीं होने देंगे। हम हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे। ये जितने भी उधर बैठे हैं, ये यहूदी एजेंट हैं, अमेरिका के एजेंट हैं। हम अपनी हुकूमत के ऊपर जोर मजम्मत कर रहे हैं। खुदा के लिए उनके पास आज जाएं, उनका हाल लें, उनकी खुराक पहुँचाएँ, उनकी दवाइयाँ पहुँचाएँ, सब कुछ पहुँचाएँ। अगर ना पहुँचा तो कल से हमारे जगह जगह पे पंजाब सिंध चारों सूबा की जो है ना धरने होंगे। अच्छा ये बता दें कि फाइनली अगर मुतालबात नहीं माने जाते या अमन बरकरार नहीं रहता, तो इसी तरीके से शहर भर के लिए जो मेन शाहराह हैं उनको भी बंद किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस का भी कहा गया है, तो उसमें भी खवातीन भी शामिल होंगी क्या? इंशाअल्लाह ताला क्यों नहीं होंगे। अभी तो हमारी खवातीन और मर्दों को पता नहीं था, और ये तो अचानक एक आदमी ने देखते गए हैं। जिस तरह एक बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम गई थी उनके साथ, उनके सब वो 72 थे, हम 72 करोड़ आदमी इसलिए जाएंगे हर शहरा के साथ, हर मिनिस्टर के उस पे हाउस पे, हर जगह पे हम धरने देंगे, लेकिन जब तक पड़ा चिनार का अमन नहीं होगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि खवातीन भी इस एहतजाज में बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं कि जब तक अमन बहाल नहीं होता तब तक ये एहतजाज का जो दायरा है वो वसी किया जाएगा। और इसी तरीके से जो है खवातीन भी बड़ी तादाद में निकली। मर्दों के शाना बशाना पड़ा चिनार में हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ ये इस एहतजाज को रिकॉर्ड कराया जा रहा है। आज जो है ये मस्जिद जा अली से शुरू हुआ था, और ये तोहफा वाले चौक पे यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो है उन्होंने वाइंड अप किया और अख्ताम पजीर किया। और एक कॉल दी गई है कि अगर अमन बहाल ना हुआ तो हमारे खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग तमाम पूरे ज़िले में निकल कर यहाँ पे एहतजाज अपना अमन के लिए बहाल करने के लिए जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तो इसके साथ में दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।